سورہ رحمان کا ایک ایسا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی دل کی ہر ایک حاجت، ہر ایک خواہش پوری ہوگی۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو آپ کو اس وظیفے سے اولاد بھی ملے گی۔ اگر نرینہ اولاد کی خواہش ہو تو وہ بھی آپ کی پوری ہوگی۔ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک چیز سے نوازے گا۔ اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے، اور میں نے خود یہ وظیفہ کیا ہے۔ جب آپ یہ سنیں گے نا تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ اس کے سننے سے آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی، جو بھی آپ کا دل چاہے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہو، کسی قسم کی پریشانی میں ہو، تو سورہ رحمان کے صرف سننے سے، پڑھنے سے بھی نہیں، صرف سننے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی جاب نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آپ کی ہر ایک تمنا پوری ہوگی، آپ کی ہر ایک مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر ایک حاجت پوری ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمارے گھر میں صبح کا ناشتہ چل رہا تھا، ہم لوگوں نے تو کر لیا تھا، میرے ہسبینڈ کر رہے تھے، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اپنی ناشتے کی تھوڑی بہت روٹین۔ خیر، ہم تو جیسے ہی اٹھتے ہیں تو فوراً پہلے ناشتہ کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ جب اٹھتے ہیں تو اس کے 1-1.5 گھنٹے بعد ناشتہ کرتے ہیں، کیونکہ فوراً ان کا دل نہیں کرتا کھانے پینے کا، کیونکہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ ایسے تھکن سا فیل کرتا ہوں، پھر فوراً مجھے ناشتہ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ تو آج چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو میں نے آج آپ کو سورہ رحمان کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانا ہے نا کہ آپ کی بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ پتہ ہے آپ کو، کیونکہ یہ وظیفہ جب مجھے کسی نے بتایا، یہ اجازت دے کے نا آپ کو مطلب بتایا جاتا ہے، اس نے مجھے اجازت دی کہ میں تمہیں دعوت دیتی ہوں اس وظیفے کی۔ ہم کسی کے گھر گئے تھے، کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ان آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ یہ وظیفہ کریں۔ ان لوگوں نے جب پتہ کیا نا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جب گاؤں سے آئے تھے نا تو ہم رینٹ کے گھر میں تھے، کہتی ہے اب ہمارے پاس نئی شو روم سے ہر بندے کے پاس گاڑی آتی ہے، اور اس کے 2 بیٹا بیٹی UK میں ہیں، اور اتنے ماشاءاللہ سے وہ اچھے خاصے سیٹ ہے، اور اپنا گھر دوسری سٹی میں بھی خریدا ہے، اور یہاں پہ اسلام آباد میں بھی اپنا گھر جو رینٹ کا تھا وہ بھی ان لوگوں نے بائی کر لیا تھا۔ وہ پورا بڑا گھر تھا، ان لوگوں نے وہ بائی کر لیا۔ تو آپ دیکھیں، صرف سننے سے سورہ رحمان کی فضیلت۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو نا دنیا کا، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور پتہ ہے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے نا جب جو بھی سورہ رحمان ہو نا، آپ نے ٹی وی میں، موبائل میں، یا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو، یا کسی بندے سے کہہ کر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کرنا، بالکل اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی تمنا ہو، وہ آپ اپنے دل میں بار بار دہراتے جائے، اور اللہ کو آپ ایسے سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور آپ ان سے دعا مانگ رہے ہیں، بالکل اپنی آنکھیں آپ نے کھول دینی ہے۔ یہ آپ نے نا بالکل نہ ادھر ادھر کی سوچنی ہے، کہیں کی بھی نہیں سوچنی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب پورا سورہ رحمان آپ سنیں، یہ آپ نے دن میں آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، اور پورے صبح اور شام 2 ٹائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کر کے کھول دینی ہے۔ جو آپ نے پانی کا گلاس، آپ پہلے سے ہی پانی کا گلاس رکھ دیں، اور اس کو نا آدھا گلاس رکھ دیں، اس کو آپ نے 3 سپ میں پینا ہے۔ جیسے 1 سپ پی لی اور سانس لی، دوسری سپ لی، پھر سانس لی، تیسری سپ لی تو آپ نے سانس لی، پھر آپ نے پھر سے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ پھر آپ اس کا کمال دیکھیں، اگر آپ کی جو بھی خواہش ہو نا وہ ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہو، انزائٹی میں ہو، اگر آپ کو آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، اگر آپ کے بچے آپ کی نافرمان ہو، شوہر نافرمان ہو، سسرال اچھا نہ ہو، دولت کی بارش ہوگی، پیسوں کی بارش ہوگی، آپ نے پورے 7 دن کرنا۔ اگر کسی کو کینسر ہو، کسی کو لا علاج بیماری ہو، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اتنی زیادہ آنٹیاں بیٹھی تھی نا، سب نے بتایا تھا کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارا حل ہو گیا تھا۔ ایک آنٹی تھی، وہ کہتی میرے ساتھ دنیا کی ہر ایک چیز تھی، پر یہ تھا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا، میں بہت زیادہ انزائٹی میں چلی گئی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے اپنے ذاتی میرے نام پر 2 گھر تھے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کس چیز میں افسر تھی، تو
उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर उसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। पता नहीं उसके किसी के खाला के नहीं बहन के बेटे की डेथ हुई थी, हाँ। तो उसके बाद उसे डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि वो उसके पीछे ना उसने दिल छोड़ दिया था। फिर उसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। तो उसने कहा जब मैंने ये पूरे 7 दिन किया आपके बताने के बाद, तो कहती है कि मेरा जो मसला था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अचानक से मुझे खुशी होने लगी। तो कहती है मैंने अब 7 दिन नहीं, अब ये मैं पूरी ज़िंदगी इस तरह सुनती रहती हूँ। अगर मैं सोती हूँ, जागती हूँ, अगर कहीं सफ़र पर जाती हूँ तो मैं सूरह रहमान लगा कर सुनती हूँ और अपनी आंखें बंद कर देती हूँ। और वो कहती है कि मुझे इस तरह लग रहा होता है कि अल्लाह ताला मुझसे बोल रहा है। तो आप सब भी ये वजीफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई बंदा ये मतलब पढ़ने में ज़रा सुस्त हो, बच्चे हों, तो सुन तो सकते हैं ना। बहुत इजी वजीफ़ा है। मैं फिर से बता दूँ, सूरह रहमान आपने 7 दिन पढ़ना है, 2 टाइम पढ़ना है, और सुबह शाम। और आपने आधे गिलास पानी रखना है और आपने वो 3 सिप में पीना है। फिर उसके बाद आपने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर देनी है और फिर अल्लाह ताला के सामने अपनी हर एक ख्वाहिश, अपनी हर एक मुराद अल्लाह ताला के सामने दोबारा से रख दे कि अल्लाह ताला तूने मुझे ये परेशानी दी है, तू ही इसका मसला मतलब हल करने वाला है, तो तुझ पे ही मैं अपना मामला छोड़ रही हूँ। और ऐसे दुआ मांगी जैसे अल्लाह ताला आपको देख रहा हो, अल्लाह ताला आपके पास बैठा हो और अल्लाह ताला आपकी हर एक सुन रहा हो। तो आप अपने दिल की हर एक जायज़ ख्वाहिश बताएं, ना कि मतलब किसी को बद दुआएं दे। मतलब ये बुरे चीज़ के लिए ये वजीफ़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप अपनी जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ हाजत के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी किया। अच्छा, मैंने भी किया। जब मुझे उन्होंने बताया ना मैं डिप्रेशन में गई थी, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था ना, तो मुझे ज़रा सी एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया था। क्योंकि आपको पता है ना कि इतना बंदा मेहनत करता है और आगे नहीं बढ़ता। तो मेरा ना रोने को दिल करता था। मुझे कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती थी, ना कहीं आना ना कहीं जाना। मेरे हस्बैंड कहते थे आओ कहीं जाते हैं बाहर, या अपनी बहन के घर चली जाओ। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, बस मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सोचें आती थी इधर उधर की, अजीब अजीब। आपको पता है जब इंसान ज़िंदगी में अकेला रह जाए, और यूट्यूब की वजह से काफ़ी ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने मुझे अकेला कर दिया था। और मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मैं बस बुरी हूँ, सबसे बुरी हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। यूट्यूब की वजह से सारे लोग नाराज़ हो गए हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं रहा। और यूट्यूब भी का जो चैनल है वो भी मेरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि मेरा चैनल ना चले और मैं इधर की इधर रहूँ। जो मैं बस मैंने उस चीज़ के लिए, फिर जब मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ताला ने ये रास्ता मेरे लिए खोला हो, जब उन आंटी ने मुझे बताया ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सिर्फ सुनकर ऐसे लगा जैसे आधा सीधा मेरा जो डिप्रेशन है ना वो ख़त्म हो गया। फिर जब मैं आई, जैसी आई ना, मैंने घर, शाम का टाइम था, मैं गई थी उनके घर। जैसी मैं आई, मैंने अबाया उतारा, वज़ू मेरा था, मैंने पहले 2 रकात नफल पढ़ी, फिर मैंने ये वजीफ़ा किया सूरह रहमान का। सोना मैंने सबसे कहा कि आप लोग खामोश हो जाओ। असलान उस टाइम छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, कुछ महीनों का था, 2 कि 3 महीनों का था। तो वो मेरे हस्बैंड के पास था और मैंने जब ये वजीफ़ा किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन के लिए किया था, ताकि जो मेरा डिप्रेशन है ना ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी परेशान थी ना कि मुझे ऐसे लग रहा था कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है और अब लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी फैमिली वाले मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। तो मैंने जब ये वजीफ़ा किया, आप यकीन नहीं जाने, एक दिन फ़र्क हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब 7वें दिन मैंने किया ना, तो बिल्कुल मैं ठीक हो गई थी। आपको पता है मेरे हस्बैंड ने ना मुझे डिप्रेशन की जो टैबलेट नहीं होती वो ला कर दी थी, वो भी मैं खाती थी, पर वो मैं डेली नहीं खा सकती क्योंकि उसमें ज़्यादा आराम होता है ना, नशा सा होता है, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो मैं आधी सी भी आधी खा के ना पूरा दिन इस तरह सुन्न होती थी, मेरा दिमाग सुन्न होता था, मुझे गुस्सा आता था, मैं हस्बैंड से लड़ती थी, बच्चों को डांटती थी बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने ये वजीफ़ा किया ना, मुझे वाज़ेह फ़र्क हो गया। तो जो भी करेगा ना, और वो ज़रूर अपने मकसद को पाएगा। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है, अक्सर ऐसे होता है ना कि कुछ औरतें जो बच्चों के लिए तरसती हैं और ससुरालों से नहीं छोड़ते कि तुम अब भी औलाद हो, बांझ हो, ये हो, वो ये वजीफ़ा ज़रूर करें।
ऐसी लड़कियां भी थी जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे कि प्लीज़ आप ही हमें वजीफ़ा बता दें, हमारी औलाद नहीं है, ताकि हमारी औलाद हो जाए। और एक लड़की थी, उसके लिए मैंने बहुत दुआ की। उसका पता नहीं किस चीज़ का टेस्ट था, मुझसे अब भूल गया। वो कहती है मुझे बहुत डर लगता है, आप दुआ करें कि मैं उस टेस्ट से भी बच जाऊँ और मैं कंसीव कर लूँ। तो ये वजीफ़ा उसके लिए भी है, वो भी ये कर सकती है। और बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मोहब्बत की शादियाँ चाह रही थी। ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे लिए आए ना, आपको पता है मैंने जब लोगों की परेशानियाँ सुनी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। और फिर मैंने उन सब के लिए दुआ मांगी जिन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ मांगे। मैंने फ्राइडे के दिन दोबारा से वो वजीफ़ा किया, जो मैंने पहले वजीफ़ा आप सबके साथ शेयर किया था। फिर मैंने सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ की, और इतनी दुआ की ना, गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआ की। क्योंकि जब मैंने इतने लोगों के मसले देखे ना, तो मैं कहती हूँ हम कितने नाशुक्र हैं ना, हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी जो है ना, हम जब थोड़ा सा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं ना, तो फिर नाशुक्री कर बैठते हैं, और जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाता है। और जो भी अल्लाह ताला ने अता किया होता है ना, तो वो अल्लाह ताला हमसे छीन लेता है। तो हमने चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें दिया हम उसमें खुश रहें, क्यों औरों की खुशियों पर नज़र रखें, हसद करें। ये हसद में भी आता है। अगर आप अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं और उनके पास आपसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको अता की है, तो वो उनकी अपनी किस्मत है ना, अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है। हम लोगों ने तो नहीं दिया ना कि हम सोचें कि इसके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। हमें चाहिए कि हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, बच्चों का, सेहत का। आप देखते हैं ना कि रोड पे जो बेचारे जिनके पाँव नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, वो भीख मांगते हैं। उनसे तो हम बेहतर है ना, फिर भी हम हसद और कीना लोगों से रखते हैं, किसी को जीने नहीं देते, किसी को खुश करने नहीं देते। अगर हमसे हो सकता भी है कि हमारी वजह से किसी का काम हो, कारोबार चले या कोई जॉब हो, फिर भी हम वो नहीं करते, ताकि ऐसे ना हो ये मुझसे आगे बढ़ जाए। तो ये ना हसद में आता है, कीने में आता है और बदनीयत में आता है। अल्लाह ताला उस बंदे को फिर ज़रूर गिराता है, और ऐसे गिराता है ना कि वो फिर सोच में पड़ जाता है कि मैंने ऐसे क्या किया था कि अल्लाह ताला ने मुझे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। और वो असल वजह यही होती है कि हसद, कीना और बदनीयती। आप जब अपने दिल में किसी के लिए कीना और हसद नहीं रखेंगे ना, तो आपकी बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी और छोटी सी छोटी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, जायज़ हाजत पूरी होगी। ये मैंने देखा है ज़िंदगी में। जिन लोगों ने भी मेरे साथ बुरा किया, मैंने ना उनको कभी बद्दुआ दिया, ना मुझे याद भी नहीं रहता कि फ़लाने ने मेरे साथ कुछ किया है। अगर मैंने कभी कभार किसी के साथ ज़िक्र किया है, तो वो मुझे काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी के बाद मैंने वो ज़िक्र और बात किया कि फ़लाने बंदे ने ये कहा या वो, पर मैं किसी के पीछे नहीं बढ़ जाती, बस अल्लाह ताला पर छोड़ देती हूँ और अल्लाह ताला से कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे और 5 वक्त की नमाज अता करने की तौफीक अता कर, ताकि मैं सारी बातें आपसे कह सकूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो मेरी आप सबके लिए मेहनत है वो रंग लाए। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वजीफ़े और अच्छे अच्छे टॉपिक और जो कुछ भी मतलब मेरे इल्म में है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि आप सबको इतना अच्छा लगेगा मेरी वीडियोस, और जो मैं वजीफ़े बताती हूँ और जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, और इसका ना सबसे बड़ा मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों को बता रहा है कि देखो तुम जितना भी चाहो ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जब तक मैं ना चाहूँ इस बंदे को गिराने का, तो कोई भी नहीं गिरा सकता। तो लोगों ने बहुत चाहा कि मैं आगे ना बढ़ूँ, यूट्यूब चैनल मेरा ख़राब हो जाए, मैं अपनी वीडियोस सारी डिलीट कर दूँ, पर अल्लाह ताला ने ये नहीं चाहा, क्योंकि मैंने ऐसी कोई फहाशी या बुराई इसमें की ही नहीं है। तो मैं अच्छे के लिए वीडियोस बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ सब इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करें। जब मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 4000 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से 4000 सब्सक्राइबर मेरे आप सब की वजह से हुए। आपका मैं दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو میں بھی آگے نہ بڑھتی. آپ لوگوں کی سپورٹ سے، آپ لوگوں کے پیار سے میں آگے بڑھ رہی ہوں. اور آپ نے نا میرے 1 لاکھ سبسکرائبر کروانے میں ایک دم سے بہت بڑا جمپ ماری ہوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کامیابی بھی ملے گی. اور ویڈیو کا بھی اینڈ ہو رہا ہے. اب میں اجازت چاہتی ہوں، مجھے اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے. رات کا ٹائم ہے، ہسبینڈ قہوہ مانگ رہے تھے، ہسبینڈ کو قہوہ دے دیا اور ویڈیو کا اینڈ. بائے بائے.